रियली फीलिंग ग्रेट। मतलब जैसे मैंने एक टारगेट बना रखा था कि जेई में अच्छा करना है, और आफ्टर दोज 3 to 4 years of preparation, now that I've achieved what I wanted, it's just awesome. And yeah, I'm feeling really excited for what lies ahead. I think it was in ninth when I realized that I was interested towards matlab science and maths, or जैसे I realized that there is so much more to learn rather than what they normally teach at school. Then I started preparing for some competitive exams, and then I realized, I think it was around that time I realized कि engineering वो चीज़ है where I can like pursue my passion in science and maths and apply to do something. Engineering is like applied sciences, so that is something that really excited me. And as I was preparing for competitive exams, I realized कि the top like institutes उस समय तो इतना पता नहीं होता, तो then I realized कि IITs करके मतलब इंजीनियरिंग के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड दे ऑल्सो मतलब उनका एंट्रेंस भी एक तरीके का मतलब काफ़ी आई वुड से अच्छा और मुश्किल, दैट उसकी ब्रांड वैल्यू है जेई की। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई फ्रॉम आई थिंक 11th। उससे पहले तो आई प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम्स इन ओलंपियाड्स, बट आई थिंक फ्रॉम देन दैट आई रियलाइज कि जेई के लिए प्रिपेयर करना है और आईटी जाना है, आईटी बनना है, एंड फ्रॉम 11th आई स्टार्टेड माई जेई स्पेसिफिक। सो द फर्स्ट मतलब आई जॉइंड FIITJEE, मतलब मेरे घर के पास उनका साउथ दिल्ली सेंटर है, तो आई जॉइंड FIITJEE देयर। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू नो मतलब वो आपको एक प्रॉपर पाथ और गाइडेंस दे देती है कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई को वो करना है, स्ट्रक्चर करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, और इन जनरल आपके फैकल्टी हो गई, पेयर्स हो गई, तो वो आपको धीरे धीरे you start realizing कि what stuff you have to do and what steps you have to take to prepare for JEE and such other competitive exams. और फिर then obviously उस time पे I think all these exams started shifting online also. So with FIITJEE you get that MyPad subscription also. From there you can access online resources from your teachers and peers. You get to know about the books you have to study, the problems you have to practice, and then धीरे धीरे you yourself get experience, and then you can figure stuff yourself for वहाँ से फिर preparation चल पड़ी। So obviously मतलब जेई की preparation is rigorous in the sense कि you have to keep going, you can't let yourself down, or you can't stop। मतलब if you at the end if you want a good rank you have to keep going, और वो preparation का जो वो एक momentum है वो stop नहीं होना चाहिए। तो that is in something which is tough in itself other than the preparation। की मुश्किल तो है ही जेई, लेकिन वो 3 to 4 years continuously उस momentum पे prepare करना is difficult। तो initially तो मतलब there was this thought कि should I leave or should I just continue, और वो I think the best thing I realized that I was never a very मतलब bright student from the beginning। मतलब 9th में I was not great, so there were a lot of people ahead of me, and that always wanted to bridge that gap। और वो जो एक gradual improvement, मतलब शुरू में तो कुछ होता भी नहीं था, फिर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं, टेस्ट में रैंक ऊपर जाती है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। मतलब दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, दैट आई कुड सी माई सेल्फ राइजिंग एंड परफॉर्मिंग बेटर। तो दैट वाज समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग। ऑब्वियसली I always enjoyed what I was doing. Again, as I said, मतलब rigorous होता है, तो that thing is tough. Other than that, I always enjoyed what I was doing, and this improvement and मतलब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। एंड जब जैसे कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा, तो एक वो होता था कि अब तो मतलब सीखना है, दोबारा और किताबें लगाओ और बुक प्रैक्टिस करो, टीचर से जाके पूछो और क्या क्या कर सकते हो, और जितना हो सके प्रिपरेशन ईयर्स में बेस्ट करना है। मतलब तो दैट केप्ट मी गोइंग, एंड आई थिंक एंड में तो काफ़ी सही रहा सब कुछ। आई वुड से दैट लाइक जब शुरू में 8th 9th में योर फ्रेंड्स आर नॉट I would say career oriented, they're more of friends। तो फिर when I started preparing for JEE, I realized that you need to have a group of friends which have like similar aspirations। उनको भी वो भी JEE के लिए prepare कर रहे हैं, उनके भी similar मतलब I would say goals हैं। तो I never chose a peer group as such। जैसे when I went to FIITJEE you have a batch, तो there you have that peer group, मतलब they allot you as such that कि आपका preparation level same हो, तो वो आपका खुद ब खुद peer group बन जाता है। फिर स्कूल में भी I found people who are preparing like me, so peer group खुद ब खुद बन जाते हैं। You don't really have to choose people। मतलब I would say you need to surround yourself with people who have similar goals, and after that I think peer group does help a lot। मतलब आप उनके डाउट्स क्लियर करते हो, वो आपसे डाउट्स पूछते हैं, तो उनको क्लियर करते हुए आपका कोई फंडा क्लियर हो जाता है, या वो आपको कोई डाउट क्लियर कर देते हैं, मतलब बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज अ स्टूडेंट कैन फेस। तो उस डिस्कशन ने मतलब काफी हेल्प करा है। एंड आई रिमेंबर जैसे मेरे बैच में मतलब देयर वर 3 people got a rank in within 10, मतलब 30 से 40 में हमारे बैच के 3 लोगों की रैंक आई। तो वो मतलब सबका इंप्रूवमेंट होता है, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। मतलब आई रिकमेंड हैविंग अ पीयर ग्रुप, एंड मतलब जेईई में स्पेसिफिकली सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव सिमिलर गोल्स कि ये पर्टिकुलर रैंक लानी है, ये करना है लाइफ में। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। मतलब डिस्कस थिंग्स विद देम, यू शुड नॉट रिफ्रेन योरसेल्फ। और मतलब पीयर ग्रुप होने से क्या होता है दैट यू डोंट स्टार्ट फील लोनली, बिकॉज एक होता है कि जेईई की दुनिया में घुस गए फिर उसी अलग दुनिया में चले गए, तो यू शुड हैव पीपल अराउंड यू टू टॉक। और फिर मतलब मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट हेल्प्स। एंड
then they help you lift yourself up and you lift them up, and it helps a lot. So I never chose a peer group, but जो भी peer group बन गया eventually, I think it helped a lot. शुरू में तो मतलब कुछ ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या बुक्स अवेलेबल हैं या क्या करना चाहिए, तो मतलब टीचर्स हेल्प यू अ लॉट इन दैट. सो फॉर लाइक फिजिक्स, इफ आई से basically I started doing NCERT and HC Verma. Like I started doing them in 9th 10th only. मतलब our teachers recommend कि you should start with these books for the basics. So 11th 12th आते आते मतलब they were almost done कि उससे basics clear हो जाता है. Then like coaching material is like a great resource कि उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको मिल जाती है. तो प्रैक्टिस के लिए या फिर जैसे क्लास में जो आपने नोट्स बनाते हो पढ़ते हुए, आई थिंक दे आर अ ग्रेट रिसोर्स. सो जैसे फिजिक्स में भी जैसे हमें कोचिंग में असाइनमेंट्स मिलते हैं या माई पैड के ऑनलाइन जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए या क्विजेज हो गई या क्वेश्चन बैंक्स हो गई, तो दे हैव अ गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है काफ़ी हद तक. तो जैसे फिटजी में भी मिलता था और ऑनलाइन में माई पैड पे भी करता था, तो उससे काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाती है. फिर one thing is कि you have to do something extra. मतलब ये तो these are some things which many people do. So for that extra stuff ये है कि काफ़ी सारे टेस्ट दो, जैसे माईपैड पेन में टेस्ट होते हैं. और उसके बुक्स की बात करूँ तो जैसे फिजिक्स में इरोडोव और क्रोटोव करके थोड़े मतलब फॉरेन ऑथर बुक्स भी you have to refer to gain an edge. मतलब I have seen कि बुक्स मतलब questions from these books have appeared in JEE advanced papers, so they help you. फिर उसके बाद even if you are complete with these resources और आपको थोड़ी और ओलंपियाड लेवल मतलब प्रॉब्लम्स करने हैं, तो you can go for a book called Pathfinder और 200 puzzling problems. मतलब इसमें काफ़ी टफ होते हैं. आई वोंट से कि दे आर कंप्लीटली रेलेवेंट, बट दे डू हेल्प. जैसे मेरे को याद है मैंने एंड में एक क्वेश्चन इनमें से किया था, वही सीधा पेपर में आ गया, तो दे हेल्प. तो फिर इसके बाद मतलब केमिस्ट्री जो नेक्स्ट सेक्शन होता है, आई वुड से कि इसमें मतलब देयर इज अ लॉट टू स्टडी एंड यू नीड टू मतलब डिवाइड योर टाइम properly. So I would say कि you should focus on NCERT and the stuff you get in coaching and online resources like MyPad primarily. इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें थ्योरी काफ़ी कुछ होती है. एंड इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स यू माइट गेट कंफ्यूज कि टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो लेकिन उसमें से आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा. तो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स. मतलब NCERT इज मेन. देन आफ्टर यू गेट कंफर्टेबल विद दीज रिसोर्सेज की सबका मतलब ये सब कुछ याद है, ये सब कुछ पता है, देन देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स. मतलब जैसे फॉर जैसे inorganic chemistry there is J.D. Lee, for organic chemistry there is Solomon and Fryle. मतलब there are a lot of books. I would say you should always ask your teachers because they know कि आप किस लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं. और मतलब इन बुक्स का क्या होता है that you don't need to cover them completely. You need to use them for those portions in which you feel you need extra reading or stuff like that. तो जैसे I said कि Solomon and Fryle हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फिजिकल केमिस्ट्री में पीटर एटकिंस करके एक बुक आती है. देन आई थिंक इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस. एक बार थ्योरी के साथ कंफर्टेबल हो गए तो प्रैक्टिस के लिए बालाजी पब्लिकेशन का सेट आता है जैसे मतलब तीनों में ही. और उसके अलावा वन मतलब ग्रेट प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक आपको मिलता है. मतलब दैट आई वुड से द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर प्रैक्टिस. मतलब इट गिव्स यू अ फ्लेवर कि क्या चीज़ें जेई में पूछता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही चीज़ें एक्चुअली टेस्ट हो रही हैं नहीं. सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट रिसोर्स यू शुड डू बिफोर एनी अदर थिंग. And then like in maths, NCERT doesn't help that much. Only for JEE main specific topics you can refer to it, but it doesn't help that much. उसके अलावा जैसे कोचिंग में थ्योरी मोस्टली कवर हो जाती है, वरना अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो आई वुड से यू कैन रेफर टू ऑनलाइन रिसोर्सेज और मे बी अरियंत और सिंगे सीरीज की बुक्स आती हैं. मतलब आई डिडंट डू देम बिकॉज मेरी कोचिंग में मतलब टीचर बहुत अच्छे थे, तो सब कुछ वहीं पे कवर मतलब हो जाता था. अदर देन दैट प्रैक्टिस के लिए विकास गुप्ता करके एक ऑथर है, उनकी बुक्स आती हैं, एक 3-4 बुक्स आती हैं, एक कंप्लीट सिलेबस पे, एक अलजेब्रा पोर्शन पे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोर्शन पे. तो आई डिड देम. मतलब मेरी टीचर ने मेरे को दे दी थी वो बुक्स करने के लिए, तो आई डिड देम रिक्वेस्टली. तो दे हेल्प्ड अ लॉट. फिर एक जैसे मेरी टीचर ने कैलकुलस के लिए समीर बंसल करके एक बुक आती है, ही रेफर दैट टू मी, तो आई डिड दैट कम्प्लीटली. मतलब काफ़ी हद तक इसको और कोचिंग में जो आपको मटेरियल मिलता है और ऑनलाइन जो मटेरियल मिलता है उसमें काफ़ी कुछ मतलब कवर हो जाता है. और फिर मैथ्स में अगेन यू हैव टू डू द प्रीवियस क्वेश्चन. मतलब आई हैव सीन क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड, मतलब नॉट कंप्लीटली बट वो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन रिपीट भी होता है. और यू शुड नो कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनको मतलब कैसे करना है. यू शुड नो द अप्रोच टू सॉल्व देम. तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई डिड. एंड अदर देन दैट जो बहुत हेल्प करता है वो एंड में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देना. जैसे हमारे टाइम पे तो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चला गया, तो माईपैड पे खूब सारे टेस्ट कंडक्ट कराता था मतलब हमारे कोचिंग. तो दे हेल्प अ लॉट कि दे हेल्प यू फिगर कि क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं याद. तो मतलब दे आर अगेन अ सोर्स ऑफ प्रैक्टिस ओनली एंड दे हेल्प टू बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस मतलब किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना है. दे हेल्प यू फिगर आउट दोस थिंग्स. सो एंड में आई थिंक rather than doing books, I would say कि एंड में आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए. और जो चीज़ आपने कर ली है, अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो बुक्स करते हुए उनको स्टार मार्क करते रहो ताकि बाद में पढ़ना आसान हो जाए. तो दिस इज स्टफ आई डिड
एंड मतलब सबका थोड़ा पर्सनलाइज होता है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है. मतलब आई रिकमेंड कि जो तो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है उनको तो रिगरसली फॉलो करो, फिर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. तो अपने टीचर या पीयर ग्रुप से एडवाइस लो और जितना मटेरियल कवर कर पाओ उतना करो. आई वुड से जैसे 9th और 10th में तो आई डिड देम जस्ट एज एवरीबडी डज कि स्कूल में स्पोर्ट्स खेलता था, कोई कंपटीशन हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, घर पे जैसे मूवीज मतलब घर पे भी और बाहर भी देखने चले जाता था, और स्पोर्ट्स में को देखना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है. जैसे हमारी सोसाइटी में ग्रुप था तो मैं उनके साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता था. जैसे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव था 9th-10th में, यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया, ऐसा कुछ कर लिया. तो 9th और 10th में तो ऑलमोस्ट नॉर्मली था, तब इतना मतलब होता भी नहीं कि इतना सीरियसली प्रिपेयर करना है. फिर एज एंड व्हेन यू कम इन 11th वो ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एज एंड व्हेन, मतलब जितना टाइम आप पढ़ाई को ज्यादा देते हो तो वो दोस थिंग्स डिक्रीज. बट वन थिंग इसकी मैंने उनको कभी भी छोड़ा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जेई की पढ़ाई कर रहे हो तो सोशल मीडिया पूरा ही छोड़ दिया, या फुटबॉल खेलना, जैसे मैं फुटबॉल मेरे को पसंद है तो पहले 4-5 मतलब बार जाता था एक हफ्ते में, फिर जेई के दौरान 2-3 बार, और कोविड में तो ऑलमोस्ट 0 ही हो गया. लेकिन आई डिड समथिंग, जैसे 2 दिन में मतलब हफ्ते में 2 दिन फुटबॉल खेल लिया. सैटरडे संडे को फुटबॉल मैचेस आते हैं तो लंबी क्लासेस के बाद डिनर के समय फुटबॉल मैच देख लिया. कभी मतलब जैसे मेरे को मार्वल काफ़ी पसंद है तो उनकी जितनी भी मूवीज़ आई थिंक जो 2 इयर्स में आई थी 11th-12th में, सारी मूवीज़ में सिनेमा में देखने 2-3 महीने में एक आ जाती है तो वो देखने चला गया. स्टैंड अप कॉमेडी और इस टाइप की वीडियोज़ मेरे को यूट्यूब पे देखना पसंद है, तो जब काफ़ी लंबा मतलब स्ट्रेच हो गया पढ़ाई का तो लंच खाते हुए ये वीडियोज़ देख ली. तो आई वुड से दैट इफ़ यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, दीज थिंग्स रियली हेल्प यू. मतलब एक हल्का सा डाइवर्ट करके आपको रिफ्रेश करती हैं, देन यू गेट बैक इनटू स्टडीज विद यू नो ग्रेटर मोमेंटम. थोड़ा टाइम पढ़ते मतलब आई सीन मेनी स्टूडेंट्स की वो कुछ और करते नहीं पढ़ाई के अलावा, एंड देन दे गेट बर्नड अप, फिर दे लीव देयर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द एंड, और दे गेट लॉस्ट, और दे गेट मतलब डीमोटिवेटेड सॉर्ट ऑफ. तो आई वुड से कि यू शुड डू देम इफ यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, और या तो अपने आप को रेगुलेट करो या लिमिटेड टाइम के लिए इट हेल्प्स. ऑब्वियसली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यही देखते रहोगे, यही सब करते रहोगे तो it does affect your preparation, but for a limited time and with a self control these things do help during it. For me I would say from the very beginning it was physics. मतलब I like the way कि वो रियल लाइफ को कैसे रिलेट करता है, जो चीज़ आप उसमें पढ़ते हो वही चीज़ें आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो. आई रियली लाइक फिजिक्स, मतलब एंड तक आई डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट. एक ये है कि केमिस्ट्री आई डिड नॉट लाइक दैट मच इनिशियली, बट देन आई मतलब मैंने वही चीज़ है ना कि एक अच्छा करने वाली बात हो जाती है कि इसमें अच्छा करना है, तो आई स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू केमिस्ट्री. एंड मतलब मैंने कई जगह सुना भी था दैट इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. मतलब जिसकी अच्छी रैंक आती है उसकी फिजिक्स और मैथ्स तो अच्छी होती है, मतलब वो अपनी रैंक को जम करने के लिए केमिस्ट्री की वो होती है. तो आई टुवर्ड्स माई लाइक between 11th and 12th I gave a lot of time to chemistry. मतलब my teachers recommended कि chemistry पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दो. तो when I started giving a lot of time to chemistry और मेरे को जब चीज़ें relate होने लगी जिस तरीके से physics में relate होनी थी, I think chemistry at the end I scored more in chemistry than in physics. और मतलब तो I would say physics तो था ही, और end में chemistry भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी. So I would say the main challenge was to keep going with the momentum. मतलब you start with a lot of जोश की जेई करना है, but then आफ्टर मतलब कभी कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, मतलब हल्का सा यू फील यू गेट डीमोटिवेटेड, एंड देन देयर इज दैट आई वुड से नॉट अ बर्डन, बट वो होता है कि आपको मोमेंटम कंटिन्यू रखना है ना, कि आपकी काफ़ी और चीज़ें सबडी हो जाती हैं, स्पोर्ट्स हो गया या और सोशल लाइफ वगैरह होगी, वो थोड़ी सबडी हो जाती है, और आपको अपनी जेई की मोमेंटम मतलब कंटिन्यूसली बनाए रखना होता है. जैसे मेरे केस में तो कोविड आ गया तो फॉर अनदर 6 months आई टू कीप गोइंग विद दैट मोमेंटम. सो आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. एंड इफ यू कैन मतलब आई पर्सनली ये था कि छोड़ना नहीं है कभी भी, अगर स्टार्ट करे तो इसको कंप्लीट करना है. ये कुछ एक ऐसी चीज़ है जो करनी है, और मतलब टारगेट बना लिया तो इसको कंप्लीट करना है. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से चैलेंजेस आई फेल्ट. उसके अलावा जो प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी बहुत जैसे कभी डीमोटिवेट हो गए, कभी टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे, मतलब आई वुड से दे वर नॉट दैट बिग चैलेंजेस. तो उसके लिए तो आई वुड टॉक टू माई टीचर्स एंड दे वर रियली हेल्पफुल, कि काफ़ी लंबी देर फ़ोन पे बात करके मतलब दोबारा रीमोटिवेट कर देते थे. तो those were not big challenges. I would say the biggest challenge was कि अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखना 2-3 साल जितनी भी साथ प्रिपेयर कर. तो मतलब जैसे हमारे टाइम पे तो कभी सर्टेन था ही नहीं कि वो 2 weeks कब आएंगे, मतलब बहुत बार डिले होता गया. तो मतलब उस समय क्या था कि जनरली नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि आई कुड डू अ लॉट ऑफ स्टफ, कि कभी कुछ नहीं मतलब पढ़ाई हो गई तो फुटबॉल खेलने चले गए, या फिर जैसे कोचिंग में टेस्ट देने जाते हो तो काफ़ी कुछ और कुछ होता रहता था. कोविड के टाइम पे ये था कि यू आर स्टक एट होम, एंड जनरली लोगों के पास ये टाइम आराम करने के लिए था. हमारे केस में यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स जस्ट बिफोर द एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले. आई नेवर काउंटेड माई आवर्स, बट पूरा दिन मोस्टली पढ़ाई में निकल जाता था, कि या एक पढ़ाई में या फिर सोशल मीडिया पे ये देखना कि एग्जाम हो भी रहा है या नहीं. मतलब ऑलमोस्ट पूरा आई थिंक 12 hours तो हो ही जाते होंगे देख के पढ़ाई में. तो ऐसे कोई कभी गिना नहीं, लेकिन उस समय कुछ खास था भी नहीं और करने के लिए. ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज वर रिस्ट्रिक्टेड. So I think around 12 hours तो हो ही जाते होंगे, but I never counted as such.
मतलब आए तो बस मतलब माय टीचर्स रिकमेंडेड कि आपको रेस्ट करना चाहिए, मतलब डोंट जस्ट मॉक टेस्ट मत दो एक दिन पहले, इमीडिएटली पहले, या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करो एक दिन पहले, मतलब यू शुड रेस्ट। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम रेस्ट यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज। ऐसा नहीं कि किताब ही छोड़ दी फिर सीधा एक दिन बाद एग्जाम में जाओगे, तो आपके माइंड को वो रीबूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यू शुड डू समथिंग, बट इट शुड नॉट बी, आई वुड से इट शुड बी लाइक लाइट रिविजन की फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लिए, कोई चीज आपको लगता है कि बार बार भूल जाते हो तो उसको दोबारा देख लिया, एनसीईआरटी ऐसी, मतलब बहुत ज्यादा कुछ पढ़ो मत और रेस्ट करो। जैसे वन थिंग इसकी जो भी मतलब कल मतलब नेक्स्ट डे के लिए जो भी चीजें चाहिए वो रेडी रखो, एक थोड़ा प्लान रखो कि ब्रेक में क्या खाओगे, सुबह क्या खाओगे, मतलब दीज थिंग्स मैटर, ये एंड में मतलब इम्पैक्ट कर देती हैं आपके रिजल्ट को। तो जैसे अगर सेंटर दूर है तो मेरा तो सेंटर मेरे को पता था कहाँ है तो मैंने नहीं गया, वरना अगर सेंटर दूर है तो यू कैन विजिट द सेंटर टू फेमिलियराइज योरसेल्फ। मतलब पढ़ो मत लेकिन पढ़ाई छोड़ो भी मत, तो कुछ हल्की सी रिविजन करते रहो। और मतलब क्या होता है कि आई रिकमेंड कि आप अपने रिवीजन को और अपने जो मॉक टेस्ट उनको प्रॉपर्ली प्लान करो, ताकि सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन का स्ट्रेस ना रहे। तो बिफोर द डे मतलब मैं जैसे बहुत टाइम मिल गया था तो आई डन एवरीथिंग आई नीडेड टू डू, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था। मैं मतलब आई जैसे मैं जनरली स्लीप एट 2 or 1 o'clock, बट उस दिन मैं 8 PM को ही सो गया। आई स्लेप्ट अर्ली, आई डिड नॉट स्टडी मच, सो यू हैव टू रेस्ट योरसेल्फ। मतलब उससे पहले यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज कि 2-3 दिन पहले तक ही आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए, तो कोई स्ट्रेस वो कैरी ऑन ना आपके पेपर में। तो यू शुड प्राइमरीली रेस्ट एंड यू शुड नॉट गिव अप स्टडीज कंप्लीटली, यू शुड बी डूइंग लाइट रिवीजन, आई सजेस्ट। तो जैसे माईपैड प्राइमरीली क्या था, इट हेल्प मी फेमिलियराइज विद द ऑनलाइन वे ऑफ टेस्टिंग। मतलब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 9th, पेपर वाज OMR बेस्ड, बट gradually 2-3 साल में it was completely shifted to the online mode. So MyPad helped me familiarize myself with the online way of testing. So जैसे normal practice आप generally paper वगैरह पे करते हो क्लास में, तो after that जैसे MyPad पे काफी सारे topic wise question banks या 20-20 मिनट की quizzes अवेलेबल है, तो I used to give them just to familiarize myself। और questions भी मतलब they were decent, I never felt कि मेरा time waste हो रहा है या फिर बहुत ही आसान चीजें। they were good level of questions, उनकी proper solution भी अवेलेबल थे। तो ऑनलाइन मेथड ऑफ टेस्टिंग से काफी फेमिलियराइज करा माईपैड में। तो जैसे हाफ एन आवर दिन में आई वुड गिव टॉपिक वाइज जो 20-20 मिनट के 2-20 मिनट के क्विजेस देके माईपैड पे, तो दैट हेल्प। और मतलब जो मेजर हेल्प माईपैड ने करी वाज just before the exam when you have to give a lot of mock tests, so our teachers recommended that you should give mock tests। मतलब generally during our preparation test OMR में conduct होते थे, but our teachers recommended कि you should give test online just before the exam। तो काफी सारे mock test, मतलब मैंने कोविड पीरियड में भी हमारे ऑल इंडिया लेवल पे mock test होते थे माईपैड पे। और जो प्री-जेईई मेन सीरीज होती थी या पुराने जेईई मेन के पेपर माईपैड, पुराने जेईई एडवांस के पेपर माईपैड पे अवेलेबल है, वो काफी सारे मतलब अटेम्प्ट करे। तो दैट गिव्स यू मतलब पता चल जाता है कि ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर कोई दिक्कत है, स्क्रीन पे 3 घंटे लगातार मतलब पेपर बैठ के देने की आदत पड़ जाती है, जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं उससे फेमिलियराइज हो जाते हो, तो माईपैड हेल्प्ड इन मी इन दैट अ लॉट। इसके अलावा भी ऑनलाइन रिसोर्सेज, मतलब आई यूज्ड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी देयर लॉट ऑफ आई वुड से गुड एजुकेशनल चैनल्स अवेलेबल जो आपको कंटेंट दे देते हैं। तो आई वुड नॉट से कि आप उनमें टाइम वेस्ट करो, मतलब 2-3 दिन लगा के फाइंड कर लो या पूछ लो जैसे पीयर्स से कि सजेशन ले लो कि कौन से अच्छे रिसोर्सेज हैं, देन फॉलो देम रिगरसली और फॉलो देम इन दोस पोर्शंस जहाँ आपको लगता है एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और बिकॉज आई हैड अ सेल्फ कंट्रोल कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल चीज देखने लगी और फिर टाइम वेस्ट करा। तो मतलब फिक्स कर लो कि ये चीज़ें मेरे को करनी है या इस चीज़ में एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत है, ये अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब इस दिन माईपैड पे टेस्ट देना है या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, जो भी करना है। तो दिस हेल्प मी अलॉट आई थिंक। तो मतलब अब तो जैसे आई नेवर प्रिपेयर ड्यूरिंग कोविड, मेरे तो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज ही था प्रिपरेशन के लिए, बट आई वुड से कि अब जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड से कि टू मतलब get yourself ready for the exam, you need to give a lot of mock test before। जैसे I used to give test on MyPad, so आप उन slots में एग्जाम दो जिन slots पे आपका फाइनल डे एग्जाम होने वाला है। You have a 2 hour break in between, so आप आदत डालो कि आप 2 hour के बीच में 1 घंटा सो रहे हो, खाना खा रहे हो, 9 to 12 या जो भी आपका टाइम हो उस टाइम पे एग्जाम दो। तो मतलब मैंने देखा कि प्रेपरेशन तो अपने में इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, बट उस प्रेशर में 6 घंटे की स्पैन पे उस दिन पे क्वेश्चंस कर पाना अपने आप में मतलब चैलेंज होता है, जिसको आपको पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पे भी प्रैक्टिस करना होता है। तो गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद गिविंग द एग्जाम फॉर 6 hours दैट डे। और उसके अलावा आई वुड से कि दैट डे कीप योरसेल्फ काम, मतलब अपने आप को लोगों से दूर रखो, ज्यादा बात मत करो किसी से। ब्रेक में फैमिली के पास जाके मतलब सो जाओ या आराम कर लो, डिस्कस मत करो। बट आई थिंक अपने आप को काम रखो, जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ो, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो लेके जाओ प्रॉपर्ली। और मतलब
काम रखो, अपने आप को ज़्यादा सोचो मत कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो क्या होगा। पहले पेपर का इन्फ्लुएंस दूसरे पेपर में मत लेके जाओ। जैसे कभी-कभार होता है कि पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो एक डिमोटिवेशन के साथ जाते हो, या पहला पेपर बहुत अच्छा चला गया तो एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चले जाते हो। तो कीप योरसेल्फ काम एंड कीप योरसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एंड डिस्कशन ऑफ द पेपर। और पेपर से पहले गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट टू प्रैक्टिस। मतलब जैसे जो मेरा क्लोज ग्रुप था 4-5 लोगों का, सिमिलरली मॉक टेस्ट, सेम मॉक टेस्ट हम देते थे एंड दे आल्सो परफॉर्म रियली वेल। सो आई सब जनरली लोग फॉलो करते हैं। अगर आप पेपर डिस्कस करोगे तो जो ऑलरेडी 6 घंटे का पेपर है, आप 2 घंटे पेपर भी डिस्कस कर रहे हो, दिमाग और खर्च कर रहे हो, तो आई डोंट रिकमेंड डूइंग दिस थिंग्स। मतलब सोना बेशक कुछ मत करो लेकिन आराम करो। आई हैव जॉइन्ड द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन आईआईटी दिल्ली। तो मतलब वन थिंग दैट इंटरेस्ट मी अ लॉट इज रोबोटिक्स एंड हाउ, मतलब जैसे ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, मतलब हाँ दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू रोबोटिक्स और मेकाट्रॉनिक्स, मतलब व्हिच हैज अ लॉट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्वड। सो मैंने अभी तक एग्जैक्टली नहीं सोचा कि क्या करूंगा, वो स्टार्टअप होगा या रिसर्च होगी, बट समथिंग मतलब रिलेटेड टू रोबोटिक्स और मेकाट्रॉनिक्स। मतलब आई वुड से कि जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड मतलब हैव दिस पिक्चर इन द माइंड कि प्रिपरेशन वाकई में करनी है, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो इफ यू डोंट मतलब किसी और के बोलने पे करो तो इट नेवर वर्क्स आउट एंड यू एंड अप वेस्टिंग टाइम ओनली। तो जिनने स्टार्ट नहीं करी, आई वुड रिकमेंड गिविंग अ थॉट ऑन एक्चुअली इफ यू वांट टू डू द प्रिपरेशन और नॉट। और जो लोग कर रहे हैं जैसे अभी इस समय कोविड के दौरान, आई वुड से द बेस्ट थिंग टू डू इज स्टे कॉन्फिडेंट। जैसे अब तो काफी चीजें लॉकडाउन वगैरह खुल गया है, तो रिफ्रेश योर सेल्फ। जैसे ऑनलाइन काफी स्ट्रेसफुल होता है कि फिजिकली किसी इंटरेक्ट नहीं करे, लेकिन काफी कुछ करना है फिर भी। कीप योर सेल्फ काम, कॉन्फिडेंट, और मतलब डोंट नेवर गिव अप कि अब प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ, अब बहुत ज्यादा हो गया। उसके लिए आई वुड से कि रिफ्रेश योर सेल्फ की पूरा दिन पढ़ते मत रहो, जो भी अब पॉसिबल है करना, स्पोर्ट्स वगैरह वो सब करो, और सोशल मीडिया पे जैसे जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स करे वो सब रेगुलरली करो। उसके अलावा काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और मतलब बेस्ट टिप इसकी अपने टीचर्स के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट मेंटेन करो इस समय। मतलब दैट हेल्प्स अ लॉट। जैसे मेरे को भी कोविड के समय कई बार कोई डिमोटिवेशन हो गया तो टॉक टू योर टीचर्स, आस्क देम व्हाट यू शुड डू। मतलब आई रियलाइज कि शुरू में आई डिड नॉट टॉक टू माय टीचर्स अ लॉट, बट that was a mistake I made. जब बाद में कोविड के दौरान I started talking to them, I realized that they're really helpful. वो आपको मतलब हमेशा सही गाइड करेंगे and they know you. So talk to your teachers, stay connected with your friends and family, and stay positive. मतलब दो चीज़ें वो सभी के साथ है। कोविड everybody will give the exam at the same time and everybody has similar situation.